explaining you the theoretical concepts of Shatkarma, which is our topic today. And along with that, I would have loved to, if you would have practiced it practically, but since you all have taken the refreshment, it is not possible for you all to now do all the things practically. But still we can do one practice at the end, because that we can do even if you have taken the meals. So at the end we will do one practice of around 10 to 15 minutes. Before that, I would be giving you a brief introduction. I have with me my student Dolly Raj, who would be demonstrating the various practices of Shatkarmas to you. So health, a much talked about concept over the years, is of paramount importance in our lives. In fact, it is very central to our existence. But due to our sedentary lifestyle and the fast-paced life, we have been ignoring our health from a very long time, right? But post-COVID, there has been a growing awareness amongst us all कि health हमारे लिए कितनी ज़्यादा important है, ये हमें COVID के झटके ने महसूस करवा दिया है, right? So World Health Organization has given us a definition of health, that is, according to World Health Organization, health is a state of complete physical, mental and social well-being, and not just the absence of disease. Not just the absence of disease. And this definition corresponds with the very essence of yoga, our ancient Indian tradition for which we have gathered here today. The science of yoga, which originated around 5,000 years ago in India, which has its roots in India. What is its basis? What is its essence? The basis, the meaning itself tells us that it is the union of mind, body and soul. So, to bring the balance of mind, body and soul, unless all these three entities of our existence are in balance, we cannot be termed as an healthy individual, right? So we all know that there are many practices of yoga which have been handed over to us by our ancient sages. You all might have listened about that, like asana, pranayam. These are very common terms. Asana, pranayam, everyone knows. Mudra, bandh. आप में से कुछ लोगों ने ये नाम सुना होगा. And one is षटकर्मा, जिसके बारे में आज हम बात करेंगे. तो जो षटकर्मा है, जैसे कि अगर आप देखें कि हमारे जो ये ह्यूमन बॉडी है, it is like a computer. So our outside it is like in hardware and our inside is software. So unless and until जब तक हमारी बाहरी और आंतरिक दोनों चीज़ों में बैलेंस नहीं होगा, तब तक हम हेल्दी नहीं हो सकते. तो हम अपनी बाहरी शुद्धिकरण के लिए, बाहरी सफाई के लिए, एक्सटर्नल हमारी अपीयरेंस के लिए, एक्सटर्नल वेलबींग के लिए, वी डू लॉट ऑफ थिंग्स लाइक वी बाथ डेली, वी ब्रश आवर टीथ, है ना, वी गो टू सैलॉन्स, वी undergo all kind of treatments, beauty treatments, all those things. But all these things we do are for our external appearance. But what about our internal health? जो हमारा अंदर का सिस्टम है, जो हमारा सॉफ्टवेयर है, जो हमारे अंदर के सारे सिस्टम्स हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम है, एक्सक्रीटरी सिस्टम है, क्या हम रोज़ इनकी सफाई के लिए या इनकी वेलबींग के लिए रोज़ के रोज़ बेसिस पे कुछ करते हैं? नो, वी डोंट डू इट. वी डोंट डिटॉक्सिफाई आवर इंटरनल सिस्टम एवरी डे, है ना. पर आजकल हम ये जो टर्म है डिटॉक्सिफिकेशन, ये बहुत ज़्यादा सुनते हैं. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए ड्रिंक्स आ गई हैं, है ना. डिटॉक्सिफिकेशन के लिए हम फास्टिंग भी करते हैं. बहुत सारे तरीके हैं जिससे कि हम अपने इंटरनल सिस्टम्स को और इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई, उनकी क्लिनजिंग और उनकी डिटॉक्सिफिकेशन करते हैं. तो ऐसा ही एक प्रैक्टिस जो है वो है षटकर्मा. षटकर्मा जो है, अब जैसे कि आपको पता है कि किसी भी चीज़ को पाने के लिए, लाइक टू रीच अ एम, देयर आर स्टेप्स. वी कैन नॉट जंप ऑन टू
anything whichever we want to achieve. We have to do it in a stepwise manner. So our ancient sages gave us a system if we want to move on a path of yoga. So there is a particular system to that, and there are some preliminary steps to that, and Shatkarma is one of those प्रिलिमिनरी स्टेप्स, या फिर आप कहें कि प्रेपरेटरी प्रैक्टिस, जो कि आपके शरीर को, अगर आपने आसन करने हैं, अगर आपने प्राणायाम करने हैं, या अगर आपका मेडिटेटिव बेंट ऑफ माइंड है, या आपका स्पिरिचुअल बेंट ऑफ माइंड है, आप स्पिरिचुअल जर्नी पे ट्रांसेंड करना चाहते हैं, तो सबसे पहले आपको अपने शरीर को स्वस्थ करना पड़ेगा, है ना। तभी आप कुछ देर के लिए बैठ पाएंगे। आसन किस लिए होते हैं कि वो आपकी मसल्स को, आपके जॉइंट्स को जो है वो फ्लेक्सिबल बनाते हैं। प्राणायाम क्या करता है, वो आपका श्वास के ऊपर, हमारी जो प्राण ऊर्जा है, हमारी जो जीवनी शक्ति है, उसके ऊपर हमारा नियंत्रण लेकर आता है। और उसी तरह से जो षटकर्मा, जिसके बारे में हम आज बात करेंगे, ये क्या करते हैं, हमारे शरीर की आंतरिक शुद्धि के लिए होते हैं, हमारी इंटरनल ऑर्गन्स की सफाई के लिए होते हैं। सो दिस इज़ अ ब्रीफ ब्रॉड लाइन, राइट। तो उसके बाद जैसे कि श्यामप्रिया मैम, आई वॉज लिसनिंग दैट, उन्होंने काफ़ी डिटेल में हमें वात, पित्त और कफ के बारे में बताया। सो आई वोंट गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दैट बिकॉज शी हैज़ ऑलरेडी टोल्ड यू अ लॉट अबाउट दैट। तो वात, पित्त और कफ, तीन दोष जो हमारे शरीर में हैं, 5 एलिमेंट्स जिनसे कि ये पूरा ब्रह्मांड बना है, और उन्हीं 5 एलिमेंट्स से हमारा शरीर बना है। उन्हीं 5 एलिमेंट्स के कॉम्बिनेशन से जो है वात, पित्त और कफ हैं। तो जब हमारे शरीर में इन तीनों वात, पित्त और कफ, जो 3 दोष है, इनका इम्बैलेंस हो जाता है या किसी भी वजह से डिसहार्मनी हो जाती है, दैट डिसहार्मनी कैन बी बिकॉज ऑफ द एक्सटर्नल फैक्टर्स as well as because of the external factors, like it can be due to your sedentary lifestyle, it can be due to your unhealthy eating habits, आप डाइट ठीक से नहीं ले रहे हो, आप गलत मलत खा रहे हो, आप अच्छे से एक्सरसाइज नहीं कर रहे हो, तो ये आप स्ट्रेस में हो, ठीक है। इन सभी वजहों से आपका जो ये वात, पित्त और कफ का जो बैलेंस है वो डिस्टर्ब हो जाता है। तो षटकर्मास करने का एक पर्पस ये भी है कि जो ये तीनों दोषों को बैलेंस करना। So if we talk about the purpose of Shatkarmas, it is that these are the 6 preparatory practices which bring about a balance between these 3 doshas and which cleanses our internal organs, right? This we already talked about. So let's just quickly come to the, what are these 6 techniques, what are the names of these techniques. So this is Neti, Dhauti, Nyoli, Basti, Tratak and Kapalbhati. Here it is in like a general sequence, but if we talk about our yogic scriptures like Hatha Yoga Pradipika और घरण संहिता, तो उसमें एक proper sequence है। like जैसे कि अगर हम धौती की बात करें तो धौती, नेति, बस्ती, न्यौली, त्राटक, कपालभाति। तो शरीर के सारे आंतरिक अंगों की सफाई के लिए ये जो 6 क्रियाएं हैं जो आगे सब डिवाइडेड है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नेति क्रिया की। आई वुड लाइक टू इनवाइट माय स्टूडेंट डॉली राज, शी विल बी डेमोन्स्ट्रेटिंग इट टू यू। सो दीज आर द पिक्चर्स। अगर हम नेति की बात करें, नेति होती है नेजल क्लिनजिंग के लिए। धौती की जो टेक्निक्स हैं वो बहुत ही इलॉबरेटिव टेक्निक्स हैं जो कि आपकी एंटायर एलिमेंट्री कैनाल को फ्रॉम माउथ टू एनस जो है वो क्लींस करती हैं, और इसमें बहुत सारी जो है इलेबोरेटिव टेक्निक्स जो आती हैं। न्यौली क्रिया, जैसे अभी मेरी स्टूडेंट भी आपको करके दिखाएगी, बट वेरी कॉमनली आपने बाबा रामदेव जी को देखा होगा टीवी के ऊपर पेट घुमाते, है ना। सो दैट इज न्यौली क्रिया। इट बेसिकली स्ट्रेंथन्स योर एब्डोमिनल मसल्स और डाइजेस्टिव सिस्टम को हमारे जो स्ट्रेंथन करता है, तो वो क्रिया का नाम है जो है न्यौली क्रिया है। बस्ती, इसको हम यौगिक एनीमा का भी नाम देते हैं, कोलन की क्लिनजिंग के लिए, हमारी इंटेस्टाइन की सफाई के लिए। अब हम क्या करते हैं, खाते तो रहते हैं, है ना, ऑल्दो भी हमारी बावल मूवमेंट्स के साथ हमारी क्लियर होती है, लेकिन फिर भी कुछ कचरा जो है इंटेस्टाइन में फंसा रह जाता है, तो उसकी सफाई के लिए जो है दैट इज बस्ती क्रिया, ठीक है। देन इज त्राटक।
Tatak is for the eye cleansing and for concentration, and the last one is Kapalbhati, which you all have heard about. It is for the frontal brain cleansing. So जब first we come to the नेति क्रिया, ये या सो शी विल डेमोन्स्ट्रेट यू। नेति क्रिया हमारी नाक की सफाई के लिए होती है, नेजल क्लिनजिंग के लिए। हमारे नाक में जो म्यूकस फंस जाता है, राइट, उसकी क्लिनजिंग के लिए होती है। बेटा एक मिनट, लेट मी जस्ट टेल देम द रिक्वायरमेंट्स। तो इसको करने से पहले सबसे पहले तो आप हमें इसके लिए इस तरह का तांबे का या पीतल का लोटा यूज़ करना चाहिए। कभी भी आपको प्लास्टिक का लोटा जो है वो यूज़ नहीं करना चाहिए। ऑलवेज यूज़ अ लोटा विच इज़ मेड अप ऑफ मेटल। देन वी नीड ल्यूकवार्म वाटर फॉर इट। हमें इसके लिए गुनगुना पानी जो कि आपकी बॉडी टेम्परेचर का हो, और उसमें आपने ऐड करना है सॉल्ट, हल्का सा 1 या 2 पिंच सॉल्ट। ये दोनों चीज़ें अब आपको पता होनी चाहिए कि पानी जो है वो गुनगुना आपको आपकी बॉडी टेम्परेचर का क्यों होना चाहिए, सो दैट टू मेंटेन द पीएच बैलेंस। एंड द सेकंड थिंग अगेन दैट कि हम सॉल्ट इसलिए ऐड करते हैं कि जो हमारे नाक में जो म्यूकस है वो इजीली जो है वो मेल्ट हो जाए और मेल्ट कर होकर निकल जाए। ठीक है, चलो बेटा स्टार्ट करेंगे। सो दिस इज़ अ वेरी सिंपल टेक्निक। यू माइट फील व्हेन यू see, it might seem to be little difficult to you, but when you will practice it, so you have to put the spout in your one nostril, fix it properly, inhale and exhale through your mouth, not through your nostrils, and the water just simply flows from the other nostril. You have to keep breathing through your mouth all through. And once we have completed half lota, you have to first of all expel the water properly. जो आपके पानी अंदर गया है उसको अच्छी तरह से ब्लो कर कर निकालना जो है वो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है। जब तक आप उसको पानी को अगर अच्छे से बाहर नहीं निकालोगे तो अंदर रह गया पानी आपको प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, लाइक हेडेक हो सकता है, आपको डिजीनेस की फीलिंग आ सकती है। तो उसी तरह से फिर एक साइड से करने के बाद हमको इसको दूसरी साइड से करना चाहिए। तो इसके कुछ ये फ़ायदे होने के साथ कि सबसे पहले तो ये आपके नेज़ल ट्रैक को जो है वो क्लियर करता है, रेस्पिरेटरी आपके सिस्टम के लिए जो है बहुत अच्छा है। इट हैज़ अ वेरी कामिंग एंड सूविंग इफेक्ट ऑन योर माइंड एज वेल, एंड देयर हैज़ बिन साइंटिफिक एविडेंस एज वेल कि ये आपके एंगर इश्यूज़ को भी जो है वो ठीक करता है। कुछ प्रिकॉशंस जो कि जनरल हैं फॉर ऑल द क्रियाज, दैट यू हैव टू डू देम एम्प्टी स्टमक। हमेशा जो है खाली पेट करना चाहिए। हमेशा सबसे पहले आप इनको किसी एक्सपर्ट से सीख कर ही करें, सीधा देखकर ना करें कभी भी। सो वंस यू हैव टू लर्न इट, यू हैव टू नो इट्स बेनिफिट्स एंड प्रिकॉशंस, ओनली देन यू हैव टू प्रोसीड फॉर द प्रैक्टिस। ठीक है, तो इसी के साथ आगे करने वाली जल नेति के बाद है सूत्र नेति, या जिसको कि हम रबड़ नेति भी कहते हैं। ये अब पहले टाइम में सूत्र नेति यूज़ होती थी, बट आजकल हम अपने मॉडर्न टाइम में थोड़ा सा चेंज जैसे हर चीज़ में आ जाता है। सो वी यूज़ दिस कैथेटर। दिस इज़ ईजिली अवेलेबल ऑन ऑल द मेडिकल स्टोर्स। तो ये भी आपकी जो जल नेति की बेनिफिट्स हैं उनके साथ साथ इसका एक एडिड बेनिफिट ये है कि ये आपकी जैसे जो नाक की हड्डी कई लोगों की बड़ी होती है ना, या टेढ़ी होती है, या जैसे साइनस का इशू आ जाता है, तो उनके लिए जो है ये क्रिया जो है वो बहुत ही बेनिफिशियल है। तो आपको डॉली अभी करके दिखाएगी। इसके लिए एक प्रिकॉशन तो यही है कि ये आपका एम्प्टी स्टमक होना चाहिए। दूसरी, हर बार आपको यूज़ करने से पहले इसको स्टरलाइज करना बहुत ज़रूरी है। यू हैव टू स्टरलाइज इट। तो आप इसको धीरे धीरे एक नॉस्ट्रिल से डालना शुरू करते हैं, एंड व्हेन यू फील कि ये आपके गले में आ गई है, तो you have to simply put your fingers inside and pull it outside. You have to rub it few times so that the mucus sticks on this catheter, and just after rubbing it for 3 or 4 times, then you can take it out from your mouth. This seems little, थोड़ा सा आपको डरावना लग रहा होगा देखने में, बट इट हैज़ गॉट इमेंस हेल्थ बेनिफिट्स। और स्पेशली जिनको प्रॉब्लम होती है, अब आजकल हमारे पास तो कॉलेज में
छोटे छोटे बच्चे भी आते हैं जैसे जिनको स्नोरिंग का इशू है, आईसाइट के लिए ये दोनों क्रियाएं जो है बहुत अच्छी हैं, विजन के लिए ये दोनों क्रियाएं जो हैं वो बहुत अच्छी हैं। इवन आजकल पीजीआई के डॉक्टर्स जो हैं वो भी जल नेति और रबड़ नेति जो है वो रिकमेंड करने लग गए हैं। सो वन मोर प्रिकॉशन कि ये आपको एक्सट्रीम वेदर में नहीं करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सर्दी में नहीं करना चाहिए। अगर आप बहुत ज़्यादा बीमार हैं, कोई बुखार है, कोई आपकी मेजर सर्जरी हुई है, तो उस भी केस में आपको इसमें नहीं करना चाहिए। एंड वन foremost thing which you have to remember that you always have to learn it first under the expert guidance, only then you have to do it। फिर उसके बाद आपको सारा कुछ पता, then you can do it at your home as well, right। इसके बाद हम आते हैं धौती क्रिया पे। ये हम आपको यहाँ पर करके नहीं दिखा पाएंगे बिकॉज ऑफ द स्पेस कंस्ट्रेंट, बट मैं वैसे आपको बता देती हूँ कि ये सीरीज ऑफ इसमें टेक्निक्स आती हैं। धौती का अर्थ क्या होता है? धोना, वॉशिंग। तो ये हमारी एंटायर एलिमेंट्री कैनाल को, हमारे लार्ज इंटेस्टाइन की क्लिनजिंग की बहुत सारी टेक्निक्स हैं। अब आपने इसमें वस्त्र धौती शायद सुना होगा या देखा होगा आपने टीवी पर कि जो कपड़ा, मसलिन का कपड़ा मुंह में डालकर और पूरी अंदर तक डालकर फिर उसको बाहर निकाला जाता है ताकि जो आपकी स्टमक की वॉल्स के ऊपर जो गंद इकट्ठा हुआ होता है ये उसकी क्लिनजिंग के लिए होती है धौती क्रिया, ठीक है। या फिर आपने जैसे सुना होगा कुंजल का नाम, जो कि वमन धौती, ये आप जैसे पिक्चर में भी देख रहे हैं, वमन धौती जिसको कि हम कुंजल क्रिया भी कहते हैं। दिस इज़ अ ईजी टेक्निक एंड यू कैन डू इट कि आप इसको हफ्ते में 1 या 2 बार आराम से इसको कर सकते हैं। इसके लिए आपको 1 से 1.5 लीटर जो है गुनगुना पानी, जिसमें कि आप नमक ऐड कर लो और सुबह उठकर खाली पेट आप इसको लगातार आपने पानी को बिना रुके जो है वो पीना होता है एंड देन यू हैव टू सिंपली वॉमिट इट आउट। तो जो भी मतलब एसिडिक सब्सटेंसेस रात के खाना खाए हुए कि आपके शरीर में जो रह जाते हैं, दोज आर रिमूव्ड बाय दिस कुंजल क्रिया, राइट। दिस यू कैन सी इन द पिक्चर। दिस इज दंड धौती, जो हमने पहले वस्त्र धौती की बात करी, उसी तरह ये दंड धौती है। इसमें भी कैथेटर का ही यूज़ होता है। इसमें भी एक ट्यूबल जैसी एक शेप की चीज़ होती है जो हम अंदर अपने इंसर्ट करते हैं और उससे पहले पानी पीते हैं और उसके साथ ही फिर धीरे धीरे पानी के साथ जो सारा एसिड जो है वो बाहर निकल आता है। दिस इज दंड धौती। वस्त्र धौती वी ऑलरेडी टॉक्ड अबाउट। सो इफ़ यू वांट टू सी द पिक्चर कि किस तरह से पहले ये पूरा कपड़ा होता है उसको अंदर ले लिया जाता है और ये बहुत ही रेस्पिरेटरी ट्रैक की प्रॉब्लम के लिए वस्त्र धौती जो है वो बहुत ही अच्छी क्रिया है, स्पेशली फॉर अस्थमा। जिनको अस्थमा की प्रॉब्लम होती है उनके लिए वस्त्र धौती इज़ अ वेरी गुड टेक्निक। नेक्स्ट वी कम टू न्योली क्रिया। ये हमारी एब्डोमिनल मसल्स को, हमारी एब्डोमिनल ऑर्गन्स की स्ट्रेंथनिंग करने वाली एक क्रिया है, जिसके कि हमारी पेट की जो अंदर की मांसपेशियां हैं, हमारे जो अंदर के ऑर्गन्स हैं, उनको स्ट्रेंथ मिलती है और उनकी जो एफिशिएंसी है वो इम्प्रूव होती है। सो माय स्टूडेंट विल डेमोन्स्ट्रेट इट टू यू। न्योली ये आगे 4 तरह की होती है, मध्यम, वाम, दक्षिण एंड न्योली क्रिया, विच इज़ द सर्कुलर मूवमेंट, विच इज़ द एंड रिजल्ट। तो अगर जब आप लेफ्ट साइड से रोटेट करते हैं, देन you आप राइट से करते हैं, देन मीडियम में, एंड देन द फुल क्रिया दैट इज न्योली क्रिया। आई होप इज इट विजिबल टू ऑल? या बेटा थोड़ा सा ऊपर करो, हाँ ठीक है। So you can see in the picture as well. Yeah. जब आप प्रैक्टिस करोगे तो ज़रूर हो जाएगा, पर उसके लिए सबसे पहले पतला होना पड़ेगा। और एंड देयर आर few preparatory things you need to know. You cannot do न्योली डायरेक्टली। जैसे अगर मैं पहले बात कर रही थी बंद, तो सबसे पहले आपका प्राणायाम, आपके आसन भी अच्छे होने चाहिए, साथ साथ में आपका प्राणायाम, आपका अपनी श्वास के ऊपर नियंत्रण होना चाहिए। आप कुंभक लगा सको। कुंभक इज़ व्हेन यू कैन होल्ड योर ब्रेथ फॉर अ वाइल, ठीक है। देन कुछ बंद होते हैं हमारे, जैसे 4 बंद हैं योग में, तो उनमें से उड्डयन बंद, जो आप जब आप पहले उड्डयन बंद की आपको प्रैक्टिस हो जाए अच्छे से, उसके बाद आप ये क्रिया कर सकते हैं, ठीक है।
सो नेक्स्ट इज बस्ती क्रिया। बस्ती होती है, जैसे कि मैंने आपको बताया, इसको यौगिक अनीमा कहते हैं। ये कोलन क्लिनजिंग के लिए होती है और ये आपकी सारी कोलन की जो इम्प्योरिटीज़ हैं उसको बाहर निकालने में आपकी मदद करती है। इसके लिए भी एक स्टिक टाइप ऑफ चीज़ होती है दैट इज़ इंसर्टेड इनटू योर एनस एंड देन all the impurities which have been collected in your colon area, they are expelled out. This is also a technique which you know first of all you have to learn under the guidance. कोई आपको पहले आपको कर दिखाएगा आपके साथ, है ना, फिर उसके बाद ही आप कर सकते हैं। तो यूरिनरी जो डिसऑर्डर्स होते हैं, या जैसे कई बार हमें इरेगुलर बॉवल की हमारे को प्रॉब्लम होती है, बाइल की प्रॉब्लम होती है, तो ये सारी जो चीज़ें हैं वो बस्ती क्रिया करने से हमारी ठीक होती हैं और हमारे लोअर एब्डोमेन के जो मसल्स हैं वो भी इससे स्ट्रेंथन होते हैं। Next, before coming to Tratak, because Tratak we will do at the end for the practical session, we come to the last part, that is कपालभाति। कपालभाति भी अब घर घर की चीज़ हो गया एक तरह से, है ना। हम सब, आप में से मैक्सिमम लोग आई थिंक सो करते ही होंगे, पर यह है कि अगर आपने अच्छे से कहीं से सीखा नहीं होगा, कई बार हम ऐसे होता है सिर्फ देखकर या पढ़कर चीज़ें सीख लेते हैं, है ना। तो आज आपको यहाँ पर द प्रॉपर वे ऑफ डूइंग कपालभाति जो है वो दिखाया जाएगा। फर्स्ट ऑफ ऑल कपालभाति क्या करता है, हमारा कपाल होता है दिस एरिया, द फ्रंटल ब्रेन रीजन। तो ये हमारी फ्रंटल ब्रेन की क्लिनजिंग की जो है वो टेक्निक है। एंड कपालभाति भी जो है वो 3 तरह की होती है, जल कपालभाति, वात कपालभाति एंड व्युत्क्रम कपालभाति। हाँ, तो आज जो हम करेंगे वो हम करेंगे वात कपालभाति, जो हम ब्रीदिंग के साथ अपने अंदर से जो एक्सेस हमारे टॉक्सिन्स हैं या जो हमारी कार्बन डाइऑक्साइड है, इट एक्सपेल्स द एक्सेस कार्बन डाइऑक्साइड फ्रॉम आवर बॉडी एज वेल एज इट स्ट्रेंथन्स आवर लंग कैपेसिटी। हमारी लंग की कैपेसिटी को भी जो क्रिया है वो स्ट्रेंथन करती है, ठीक है। और साथ में साथ जैसे आपको पता है कि इसमें आपकी एब्डोमिनल मूवमेंट भी होती है, पेट की भी जो आपकी है इसमें मूवमेंट होती है, तो ये आपके एब्डोमिनल मसल्स को भी जो है वो स्ट्रेंथन करती है। और उसके साथ साथ जो भी डाइजेशन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं लाइक कॉन्स्टिपेशन हो गई, उसके लिए बहुत अच्छी है। एंड स्पेशली जिन लोगों को मोटापे की प्रॉब्लम होती है ना, मोटापे का जो इशू होता है, फॉर देम ऑल्सो कपालभाति इज़ वेरी गुड। एंड वन मोर एडेड बेनिफिट स्पेशली फॉर द फीमेल्स, दैट इफ़ यू प्रैक्टिस कपालभाति यू कैन नेवर गेट ओल्ड। सो इट ब्रिंग्स sheen and shine on your face. It is very good for your skin as well. तो कपालभाति में क्या किया जाता है, जैसे कि आप ये पिक्चर में देख रहे हैं कि इसमें जो आपका जो इनहेल होता है ना, दैट इज़ पैसिव। जो हमारी श्वास लेने की प्रक्रिया होती है वो पैसिव होती है, या मैं कहूँ कि वो स्पॉन्टेनियस और स्वाभाविक होती है। वी डोंट फोकस ऑन द इनहेल, वी फोकस ऑन द एक्सहेल। हमारा इसमें जो श्वास को छोड़ना है दैट इज, एंड हमारा श्वास को जो भरना है दैट इज पैसिव, ठीक है। तो डॉली आपको कर दिखाएगी। फॉर दिस यू कैन सिट इन एनी मेडिटेटिव पोस्चर एंड द फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट थिंग इज दैट योर स्पाइन एंड नेक हैज़ टू बी इरेक्ट। दिस यू कैन डू व्हाइल सिटिंग ऑन चेयर एज वेल, या जैसे अगर किसी को बैक की प्रॉब्लम है तो आप वॉल की सपोर्ट भी ले सकते हैं इसके लिए, ठीक है। चलो बेटा करके दिखाएंगे। ये हमने आपको आज करवानी थी, बट आपने क्योंकि हाँ, दोज हु कैन डू इट दे कैन, जिन्होंने नहीं लिया रिफ्रेशमेंट वो कर सकते हैं। बहुत ज़्यादा मत कीजिए फिर, या हाँ, खाने के बाद देखिए अगर कपालभाति करनी है इट हैज़ टू बी एम्प्टी स्टमक और देयर हैज़ टू बी एटलीस्ट अ गैप ऑफ 2 to 3 आवर्स अगर मील्स का भी है। जैसे अगर सुबह आप 7 साढ़े 7 बजे हल्का अगर कुछ ले लेते हैं, है ना, तो या तो आप उससे पहले कर लें। पर जैसे हमारे डे टाइम में भी योगा सेशंस होते हैं, लेडीज़ आती हैं 9:30 साढ़े 10 बजे, तो उनको फिर हम ये रिकमेंड करते हैं कि वो थोड़ा अर्ली ब्रेकफास्ट कर लें और उसमें भी थोड़ा मतलब लाइट करें, है ना, पराठा वराठा नहीं खाना, थोड़ा लाइट आप ब्रेकफास्ट कर लीजिए। सो जैसे कि आप देख रहे हो कि इसमें श्वास का आपको सिर्फ छोड़ना है और श्वास छोड़ने के साथ आपका पेट जो है वो अंदर जाएगा, ठीक है। देखिए ये आपने ना एक बेसिक चीज़ ध्यान रखनी है, जो वैसे तो कल प्राणायाम का सेशन है उसमें आपको क्लियर होगा,
कि हमें ना एक्चुअली वी डोंट नो एक्चुअली हाउ टू ब्रीथ करेक्टली। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम हम श्वास लेना ही भूल चुके हैं, हमें सांस ठीक तरीके से लेना नहीं आता। अगर हमें सांस लेना सीखना है तो हमें एक छोटे बच्चे को देखना चाहिए। वी शुड लुक एट अ न्यूली बॉर्न चाइल्ड। इफ़ यू ऑब्जर्व हिम व्हाट ही डज, जब वो सांस भरता है तो उसका पेट पूरा फूलता है, जब वो सांस छोड़ता है तो पेट अंदर जाता है। आप अपने आप को वैसे ऑब्जर्व करो, हम क्या करते हैं, हम सांस भरते हैं, हम पेट अंदर खींच लेते हैं, सांस छोड़ते हैं, या हम कोई मूवमेंट ही नहीं करते। वी कीप आवरसेल्व्स सो स्टिफ एंड स्ट्रेस्ड ऑल द टाइम दैट देयर इज नो एब्डोमिनल मूवमेंट, देयर इज नो एक्सपेंशन और कंट्रैक्शन ऑफ आवर लंग्स, वी आर जस्ट डूइंग शैलो ब्रीदिंग, है ना, शैलो ब्रीदिंग करते रहते हैं हम। तो ये कपालभाति हमको ब्रीदिंग का भी एक तरीका जो है कि श्वास भरने के साथ, यही टेक्निक इसमें हम फॉलो कर रहे हैं कि जब आप श्वास छोड़ रहे हो तो पेट आपका पूरा अंदर, एक गुब्बारे की तरह, like when you fill in the air into that balloon it expands, है ना। तो उसी तरह से हमारा पेट है। एक ये सिंपल फंडा आपने जो है ये ध्यान में रखना है, इसको आप अपनी डेली प्रैक्टिस में, वैसे तो सुबह उठ के अगर आप कॉन्शियसली करें जस्ट फॉर 5 or 10 minutes, इफ़ यू प्रैक्टिस दिस एब्डोमिनल ब्रीदिंग, just sit silently for a few moments, just start observing your breath, and then just start visualizing that when you are inhaling your stomach is expanding and when you are exhaling your stomach is contracting। तो आप देखोगे कि जब आप ये 8 और 10 दिन करोगे, you will feel so much of calm and peace in yourself। हमारा जितना भी स्ट्रेस होता है इस छोटी सी प्रैक्टिस के साथ, या रात को भी अगर आप सोते हुए व्हेन यू लाई डाउन ऑन योर बेड, हमें इमीडिएटली तो नींद नहीं आ जाती है ना, तो सोने से पहले व्हेन यू आर लाइंग ऑन योर बेड यू कैन जस्ट लाई डाउन स्ट्रेट एंड जस्ट ऑब्जर्व द राइज एंड फॉल ऑफ योर नेवल रीजन, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रेथ फॉर अ व्हाइल, दिस यू कैन डू, राइट। तो इसके बाद हम आते हैं त्राटक क्रिया पे, जो कि अभी हम करेंगे। हम बहुत त्राटक क्रिया, ये बेसिकली आई गेजिंग की या कंसंट्रेशन की जो है एक टेक्निक है, हमारी आईज़ की एक्सरसाइज की टेक्निक है, लेकिन इसके साथ साथ ही त्राटक के जो है इमेंस मेंटल, स्पिरिचुअल एंड साइकोलॉजिकल बेनिफिट्स भी हैं। ये आपकी आँखों की सफाई के साथ साथ, आपकी ऑप्टिक नर्व्स की सफाई के साथ साथ जो है आपकी विल पावर को बढ़ाती है, आपकी कंसंट्रेशन लेवल को बढ़ाती है, आपका इमोशनल कंट्रोल लेकर आती है। दिस इज़ अ वेरी गुड प्रैक्टिस। अगर आप ये अपने घर पे बच्चों को, अपने आसपास, इफ़ यू कैन मेक देम प्रैक्टिस दिस त्राटक क्रिया ड्यूरिंग दिस, स्पेशली ड्यूरिंग दिस ग्रोइंग ईयर्स ऑफ देयर्स, so it is a very beneficial practice for that। And the second thing that if you want to move on a spiritual path, or if you want to experience the meditative part of yoga, then Tratak is like a preparatory step। ये एक तरह से आपको प्रिपेयर करता है, जिस तरह से षट क्रियाएं आपको आसन के लिए, प्राणायाम के लिए प्रिपेयर करती है, तो उनमें से जो त्राटक क्रिया है ये आपको मेडिटेशन के लिए, ध्यान की पूर्व तैयारी है एक तरह से, ठीक है। तो ये हम करेंगे। इसको आप, वैसे तो सबसे बेस्ट तरीका इसको करने का होता है कि जब आप इसको घी के दिए के ऊपर करते हैं। ऑल्दो आपने देखा होगा कुछ लोग जो है इसको कैंडल फ्लेम के ऊपर भी करते हैं, या जैसे जिनको कई हेल्थ इशू होते हैं, लाइक इफ़ समवन इज़ एपिलेप्टिक, या अगर किसी को ग्लोकोमा की प्रॉब्लम है, या अगर वो नहीं फ्लेम के ऊपर गेज कर पाता, कईयों को एंग्जाइटी इशू भी हो जाता है ना, सो दे कैन प्रैक्टिस इट ऑन ब्लैक डॉट। तो आप एक पेज के ऊपर काला बड़ा सा घेरा डॉट का लगा के, और उसके ऊपर आपको इसको कॉन्सेंट्रेट करना होता है, टकटकी लगा के उसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसी चीज़ के ऊपर देखना होता है जब तक कि आपकी आंखों में से आंसू ना आ जाए, ठीक है। until the tears flow down, tears roll down your face so that it cleanses your eyes, and when you are concentrating on a particular object, then it is developing your concentration and willpower, right। एक स्टैंड के ऊपर we can have 5 participants for this। कुछ और चीज़ों का ध्यान इसको, कि एक जो आपकी स्टैंड, जो आपकी फ्लेम है, और उसका जो आपका डिस्टेंस है, आपका 1 आर्म का इसमें डिस्टेंस होता है, ठीक है। स्ट्रेट आपने इसको किसी भी मेडिटेटिव पोस्चर में जो है बैठकर करना होता है,
और जो आपकी जो फ्लेम है, कैंडल की जो फ्लेम है, वो आपके बिल्कुल आई लेवल पे होनी चाहिए. वी नीड टू स्विच ऑफ दीज फैंस एज वेल. एंड द लाइटिंग, लाइट भी थोड़ी सी डिम कर देंगे. आप जिसमें भी मतलब 10-15 मिनट आराम से जिस पोस्चर में बैठ सको ना, चाहे आप चौकड़ी मार लो, अगर आप वज्रासन में बैठना चाहते हो वज्रासन में बैठ जाओ, नहीं तो वैसे आई वुड रिकमेंड यू कि आप आराम से चौकड़ी मार के बैठिए. बस कमर गर्दन सीधी रख लीजिए अपनी, आंखें बंद कर लीजिए. क्लोज योर आइज, क्लोज योर आइज एवरीवन. आंखें कोमलता से बंद, आंखों को भींचेंगे नहीं. एक बार जहाँ पर भी आप बैठे हैं इस हॉल में, अपनी आसपास की जो आपकी सराउंडिंग है उसके प्रति गहरी सजगता, थोड़ा सा अवेयर हो जाइए, थोड़ा सा सजग हो जाइए. जस्ट बी अवेयर, वेयर आर यू सिटिंग एट दिस प्रेजेंट मोमेंट. कहाँ बैठे हैं आप? Feel the touch of your body to this ground. अपने आप को इस ज़मीन के प्रति थोड़ा समर्पण भाव लेकर आइए जहाँ पर भी आप बैठे. Invoke a feeling of surrender. अब बाहर से ध्यान अपने शरीर पर ले आइए और एक नज़र अपने शरीर पर डालिए. सिर से लेकर पैर तक, पैर से लेकर शरीर तक अपने शरीर की स्थिति को अच्छे से जांच लीजिए. शरीर में किसी भी तरह की अकड़न ना हो. कमर गर्दन बिल्कुल सीधी हो, कंधे बिल्कुल रिलैक्स छोड़ें और अब हिलना डुलना नहीं है. एक बार अपनी शरीर को एडजस्ट कर लें और उसके बाद एब्सोल्यूट स्टिलनेस, प्रैक्टिस एब्सोल्यूट स्टिलनेस फॉर अ व्हाइल. नो मूवमेंट इन योर बॉडी. Whatever natural breath, spontaneous breath is going inside and coming out, just observe it for a while. कुछ देर के लिए बस उसको देखते जाइए. प्लीज़ फ़ोन साइलेंट कर दीजिए. ध्यान सिर्फ आपकी श्वास पर, श्वास कैसे भीतर जा रही है, श्वास कैसे बाहर आ रही है. श्वास के साथ हमने कुछ देर के लिए जुड़ जाना है. अपने आप को श्वास के साथ जोड़ कर रखना है. श्वास के द्वारा हो रही जो सेंसेशंस हैं आपकी बॉडी में, उन पर ध्यान लेकर जाइए कि जब आप श्वास भर रहे हैं कैसे आपकी श्वास ठंडी है, दोनों नॉस्ट्रल्स में फील कीजिए. और कैसे जब आप श्वास छोड़ रहे हैं तो आपकी श्वास में एक गर्मी है. श्वास की ठंडक को हल्का, लंबा और गहरा करें, जैसे कि अपने भीतर पूरा श्वास भरें और अपने पेट को पूरा फुला दें और श्वास छोड़ें नाभि पूरी अंदर. 8 से 10 बार मेंटल काउंटिंग के साथ इसी प्रैक्टिस को करें. Inhale deeply and exhale completely with the expansion and contraction of your abdomen.